इसको थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एक 7.2 फिगर शोज अ पार्ट ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू सिंपल बेंडिंग। हम मान रहे हैं कि इस प्योर बेंडिंग का केस है, ये मोमेंट लग रहे हैं। एंड कंसिडर a small length of dx of this part of the beam and consider two sections AB and CD which are normal to the axis of the beam NN. ठीक है, due to the action of the bending moment, the part of the length delta x will be deformed as shown in figure. From this figure, it is clear that all the layers of the beam which were originally of the same length do not remain of the same length anymore. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल जो ये हमारे ए सी है, एन एन है एंड बी डी है, बिकॉज जब लोड लगने मोमेंट्स लगने के बाद ये बेंड हो रहा है इन एन आर्क, तो ए सी जो है हमने कल पढ़ा था कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो फाइबर्स हैं दे आर अंडर कंप्रेशन, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, और न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे की फाइबर्स हैं दे आर अंडर टेंशन एंड दे आर स्ट्रेचिंग। तो ए सी शॉर्ट की लेंथ शॉर्टन हो रही है, ए डैश सी डैश की लेंथ शॉर्टन हो रही है देन ए सी, और बी डैश डी डैश की लेंथ थोड़ी स्लाइट इंक्रीज हो रही है देन बी डी. So the top layer such as AC has deformed to the shape A dash C dash. This layer has been shortened in its length. The bottom layer BD has deformed to the shape B dash D dash. This layer has been elongated. So from figure 7.2b, it is clear that some of the layers have been shortened while some of them are elongated. So at a level between the top and bottom of the beam, there will be a layer which is neither shortened nor elongated, and that layer is the neutral layer. So n dash is equals to nn. ये वाली लेयर ऐसी है, कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट करिए ना ये elongate करिए, and nn is equals to n dash n dash. तो इस लेयर को हम कहते हैं न्यूट्रल लेयर, neutral layer surface. This layer is shown by n dash and is shown in the figure 2a by nn. The line of the intersection of the neutral layer on a cross section of the beam is known as neutral axis. ठीक है, तो इसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, जो आपके क्रॉस सेक्शन पे नजर आएगा. The layer above nn have been shortened and those below have been elongated. Due to the decrease in length of the layers above nn, these layers will be subjected to compressive stresses. So, due to increase in the length of the layers below nn, these layers will be subject to tensile stresses. तो ऊपर वाली में compressive forces generate होंगी और nn से नीचे वाली जो fibers हैं उनमें tensile stresses generate होंगी. So we also see that the top layer has been shortened maximum as we proceed towards the layer nn. The decrease in length of the layers decreases. At the layer n is equals to n, there is no change in length. This means that the compressive stress will be maximum at the top layer. Similarly, the increase in length will be maximum at the bottom layer. As we proceed from the bottom layer towards the nn, the increase in length of the layer decreases. So वही जो कल डिस्कस करी थी, सबसे ऊपर वाली पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा. The maximum contraction is at the outer most top fiber. यानी A डैश C डैश पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा और B डैश D डैश पे सबसे ज्यादा इलोंगेशन होगा. ठीक है, और जैसे न्यूट्रल एक्सिस से करीब जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, ऐसी ही कॉन्ट्रैक्शन न्यूट्रल एक्सिस से करीब आते आते कम होगा. Hence, the amount by which a layer increases or decreases in length depend upon the position of the layer with respect to the nn. This theory of bending is known as theory of simple bending. ठीक, तो इसको हम ये वाला expression derive करते हैं. Let's see if I would be able to draw properly. This is your neutral layer nn.
and we are taking one more layer in the tensile zone at a distance y from the neutral surface. Okay. So we may call it as A, and call this as C, and this is N. And let's call this as N again, and this point is E. This point is F. Okay, and the distance is Y, A, C, N, N, E, F, and this is B and D. ठीक है, तो I have named all of these. मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं तो चला जाएगा. ठीक है. So this is the small element dx. We can give it a name as a delta x. Okay, this is delta x and this is the distance y. This distance is y. Okay. So I have drawn this for the small element, and one more figure to draw is the deformed shape of it. Fine. ठीक है, तो ये अपने ड्रॉ करा इसका बेंडिंग शेप. ये पॉइंट O है और इसमें है बीच में न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल सरफेस. क्रॉस कर दे रेड से. यहाँ से एक वो आ रहा है, एक इसमें फाइबर भी है, ई एफ जो है उसे भी हमें ड्रॉ करना है अंदर. इट इज लाइक दिस. ठीक है, इससे हमने कहना है कि ई डैश एफ डैश, इसका डिस्टेंस y है फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर, और एक इसमें हमें ड्रॉ करना है और
radius. का डिस्टेंस है r from the neutral axis. और ये वाला पोर्शन जो है, this distance is small y. So this is y. और यहाँ पर अब जल्दी जल्दी इनके वो लिख देते हैं नेमिंग्स. अब ये हो गया a डैश और ये हो गया है c डैश और ये है n डैश this is again n dash और नीचे फाइबर जो है इसमें है ये e dash, this is f dash and the last one is b dash or d dash. ओके, आई होप कुछ फिगर ठीक ठाक सी बन गई है. एंड इसमें एक एंगल बना है, दिस होल एंगल इज थीटा. दिस होल एंगल इज थीटा. ठीक है, और ये रेडियस r है. और अगर इसका हम वो देखें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, न्यूट्रल एक्सिस बनाएंगे तो हम रेड से ही बनाते हैं. So this is the small line. The stress diagram. And the top fiber is having maximum compression and the bottom fiber is having maximum tension stress, and this is n dot a neutral axis. Okay, so this is the stress diagram. You can write it here as stress bit niche stress diagram. तो हमने एक लेयर कंसिडर करा है, दैट इज the small element of a beam EF डेल्टा x, और वो डेल्टा x के अंदर हमने एक फाइबर कंसिडर करी है दैट इज EF which is at the distance y from the neutral layer. और इस EF का जो है वो इक्वल्स है, that is equals to the length of the EF is equals to delta x, and which is equals to the NN is equals to AC and AC is equals to BD. So अभी जब there is no bending, उस केस में ये सारी layers की जो length है that is equal. So जब ये bending हो जाती है then what is happening,
एट द टाइम ऑफ बेंडिंग वी आर सीइंग के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, द लेंथ ऑफ AC is now turning into A dash C dash, it is contracting. और NN हमने इस assumption में पढ़ा था कि न्यूट्रल लेयर पर ना ही कंप्रेशन होता है और ना ही टेंशन होता है, तो NN will be equal to N dash N dash, N dash और N dash and NN are equal. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि original length of the layer, so it is EF is equals to delta X. Delta X I have to write because पता नहीं क्यों डेल्टा एक्स, ठीक है। और न्यूट्रल लेयर का जो लेंथ है दैट इज लेंथ ऑफ द न्यूट्रल लेयर NN is equals to delta X. ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था आपको, ये इसका भी डेल्टा एक्स होगा, उसका भी डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल लेंथ है वो अभी सेम है, अभी हमारा बेंडिंग जब नहीं हुआ है उस केस में। तो आफ्टर बेंडिंग क्या होगा, in the case of after bending, the length of neutral layer N dash will remain unchanged. Will remain unchanged. But the length of neutral layer the length of सीधा सीधा N dash N dash N dash N dash the length of sorry E dash F dash N dash F dash will increase, and hence N dash is equals to N is equals to delta X. ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट था कि E dash F dash जो है आफ्टर बेंडिंग जो लेंथ ऑफ द न्यूट्रल लेयर N dash है वो तो अनचेंज रहेगी, लेकिन EF की जो लेंथ है वो थोड़ी यहाँ, क्योंकि न्यूट्रल लेयर के नीचे टेंशन जोन में है तो इसमें इलोंगेट होगी, तो E dash F dash की कुछ लेंथ बढ़ जाएगी। इसके बाद हमें जो है अब करना है कि यहाँ पर ये हम देख लेंगे कि एक तो डेल्टा एक्स N dash इज इक्वल्स टू NN इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, हम इसको और फर्दर लिख लेते हैं, R
थीटा, थीटा कैसे लिखेंगे इसमें? तो टेक्स्ट we'll see it later. लेते हैं r theta. This is r theta and this is equals to AB. This is equals to BD and this is equals to AC. AC is equals to is equals to EF. EF. ओके, सो ये हमको यहाँ पर हमने एक, ये क्या हुआ, यहाँ से पता चल रहा है कि डेल्टा एक्स इस वाले केस में डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। इसकी वैल्यू पता है कि हम यहाँ से हमने इसकी इनिशियल जो लेंथ है वो हमको मालूम है। तो अभी अभी हमको क्या करना है कि हम अब पता करेंगे कितना स्ट्रेन है हमारी जो फाइबर है उसके अंदर। जी, तो ये मैंने एक्चुअली लिखा है कि ये विदाउट बेंडिंग है, लेकिन इसको अगर हम पहले वाले से इनसे कंपेयर करें, मतलब विदाउट बेंडिंग वाले केस में, तो दीज आर आल्सो डेल्टा एक्स। and this is equals to ए बी। बिफोर बेंडिंग वाले केस में कर रहे हैं तो ए बी, दिस इज नॉट चेंजिंग, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो इसको काट दो so that you will not get, okay। now अब हमें निकालना है व्हाट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या कितना होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेसेस जनरेट है तो इसमें स्ट्रेन भी होगा। so what is the strain in the fiber? Epsilon EF। EF में कितना होगा स्ट्रेन? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू this y upon z, y on r, ठीक है, it is y upon r। this is the strain in the fiber EF, y upon r। वो कैसे आया? ठीक है सर, हमने ये आया आपको, यहाँ से मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। this is coming from epsilon E F is equals to E dash F dash minus EF F dash minus EF। लिखा भी नहीं जा रहा है इसमें से।
बहुत कुछ लिखना था, ई एफ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ ई एफ। अब इसमें यहाँ से जब आप वैल्यूज प्लेस करेंगे तो यू विल गेट y अपॉन r. What is E dash F dash? E dash F dash is, ये देखिए ना यहाँ पर ये आर्क वो होता है ना, आर्क की क्या वैल्यू होती है, ई एफ की क्या वैल्यू होगी, ई डैश एफ डैश की, थीटा इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है ना एल अपॉन आर रेडियस। तो यहाँ पर आपका जो आर थीटा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एल इज योर आर प्लस वाई फॉर ई डैश एफ डैश, लेंथ फ्रॉम द सेंटर फाइबर का आर प्लस वाई है ई डैश एफ डैश का। तो यहाँ पर तो आपको निकालना है बेसिकली यू आर फाइंडिंग आउट स्मॉल आर इज इक्वल्स टू लेंथ हो गई आर प्लस वाई इंटू थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आर, दिस इज एक्चुअली द नीचे आएगा आर प्लस वाई इज रेडियस, और ये हो जाएगा आपका, दिस इज द लेंथ दैट वी आर कैलकुलेटिंग, दिस इज द आर्क की लेंथ ई डैश एफ डैश, दिस इज गोइंग टू बी ई डैश एफ डैश is equals to y into theta. तो यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया r plus y into theta. And what is EF? अब EF क्या होगा, EF की डिस्टेंस जो ये वाला EF है इसका हो जाएगा r थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि r थीटा माइनस और नीचे आ जाएगा r थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस epsilon EF is equals to y upon r. ये तो एक इक्वेशन जनरेट हो गई आपकी। नाउ we can write in the terms of stress and strains epsilon EF in terms of stress क्या होगा, हुक्स लॉ के हिसाब से, उसमें हमने पढ़ा था हुक्स लॉ भी assumption में वैलिड होगा, एंड सिग्मा एट कहाँ पर EF पे जो सिग्मा होगा यानी स्ट्रेस ऑन द फाइबर EF अपॉन E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक ये इक्वेशन हो गई, ये दो एक, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सो अगर हम कंपेयर करें ठीक है, कंपेयरिंग 1 and 2, तो क्या हो गया आपके पास y अपॉन r सिग्मा ई एफ। अब ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, इन जनरल अगर आप लिखेंगे किसी भी फाइबर के लिए तो हम सिंपली लिख देंगे उसको सिग्मा, सिग्मा बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर फाइबर, इसके लिए हम ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये इक्वेशन बन गई, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं दैट सिग्मा अपॉन y is equals to E अपॉन r। ठीक है, तो ये एक पार्ट ऑफ द हमारी बेंडिंग इक्वेशन वी हैव अचीव्ड। अब इसमें E कांस्टेंट है, ये R कांस्टेंट है, ओनली ये स्ट्रेस भी आपको लोड की वजह से कांस्टेंट मिलेगा,
ओनली वाई इज चेंजिंग। जिस फाइबर पे जाएंगे उसका वाई आपको लेना होगा, वाई वेरी करेगा, ठीक है। वाई क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल न्यूट्रल लेयर। न्यूट्रल लेयर से अगर नीचे वाली, इससे नीचे वाली फाइबर पे जाएंगे तो उसका वाई वेरी करेगा, अगर आउटर पे जाएंगे तो उसका वाई वेरी करेगा। तो इस इक्वेशन में जो है अब सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज द वाई। ओके, ठीक है, यहाँ पर तो इतना हमने कर लिया, दिस वी हैव डन। So here you can see that since E and R are constant, therefore stress in any layer is directly proportional to the distance of the layer from the neutral layer. ठीक है, stress is directly proportional हो गया क्योंकि ये दोनों constant हैं, तो stress is directly proportional to the y, distance of the fiber from the neutral layer. So this equation 7.1 show करता है variation of stress along the depth of the beam. तो ये जो हमने ड्रॉ करा है ना stress diagram, this is actually the variation of the stress from the neutral axis, जो है यानी y के जितना y मूव करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ये दिखा रहा है स्ट्रेस इज वेरिंग। So all the layers above the neutral layer are subjected to tensile stresses, where the layers above neutral layer are subjected to, sorry, all the layers below the neutral layer are subjected to tensile stresses, whereas the layer above the neutral layer are subjected to compressive stresses. तो इसको हम इस तरह से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं।